خدا ان کی زندہ آواز کو سنتے ہیں. میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل اور اس کا 18 باب. اور اس کی 3 آیت. میرا ٹارگٹ ورک ہے یہاں پر اس کے اوپر، اس آیت کے اوپر میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں گا. یہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو پورا وہ شیڈول بتا دوں گا کہ یہ ورس کا اوپر اور نیچے کیا ہے. پر میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ ورس نمبر 3. آئے میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل اور اس کا 18 باب اور اس کی 3 آیت. اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو، کیا کرو؟ اگر توبہ نہ کرو اور بچے کی مانند نہ بنو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. ہاللیلویا. یہ ہے میرا ٹارگٹ پوائنٹ. آگے ورس نمبر 2 پڑھتے ہیں. اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچے کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا. اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. ہاللیلویا. اب مین چیز یہاں پر ہمیں یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں. جب یہاں پر سچ کی بات کرائسٹ کا ایک زبردست ڈائلیک ہے جس میں لوگ متوجہ ہو جاتے تھے، لوگ اٹریکشن ہو جاتے تھے، لوگ کرائسٹ کی آواز کو دونوں کانوں سے اور دونوں آنکھوں سے کرائسٹ کو دیکھتے اور اپنے کانوں کو دھیان سے کہتے کہ کرائسٹ نے کہا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں. دھیان سے سنو کہ یہ بات عام نہیں ہے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ کیا امپورٹنٹ ہے؟ سب سے پہلے اگر جو چاہتا ہے کہ میں آسمان کی بادشاہی کے اندر جاؤں اس سے توبہ کرنی ہوگی. اور توبہ کیسی کرنی ہوگی؟ ناپاکی سے، بت پرستی سے، جادوگری سے، جھگڑے سے، عداوت سے اور جدائیوں سے، نشے بازی سے توبہ کرنی ہوگی. اور ہر اس گھنونے کام سے جس سے خدا تم لوگوں کو منع کرتا ہے. یہ ہے توبہ. پھر اگلا پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ اور بچے کی مانند بنو. کس کی مانند؟ جب ایک بچہ اپنی ماں کی کوکھ سے 9 مہینے کے بعد اپنی اس دنیا کے اندر آتا ہے تو بہت سے لوگ اس بچے کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو دیکھتے ہیں. وہ 6 مہینے کا جب ہو جاتا ہے یا آگے پھر 1 سال کا ہوتا ہے، بہت سے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، بہت سے لوگ اسے غصے سے دیکھتے ہیں. وہ آپ کو ججمنٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بہت سے لوگ اس کی سکن کو دباتے ہیں اور اس کو مسکرا کے کہتے ہیں اے بیبی کیسا ہے تو بہت اچھا ہے، بڑا پیارا ہے. اس کو بڑا پیار کرتے ہیں. کچھ لوگ بہت سے چھوٹے بچے کو جب وہ روتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میری پرابلم سے ہے، تو پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں او باجی پھوڑ تیرا منڈا دروں دائی پھوڑ لا باجی. اس طرح سے اس بچے کو 3 ایکشن دیتے ہیں. ایک کیا؟ غصہ، دوسرا مسکراہٹ اور تیسرا اس کو حقیر جانتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بچہ آپ کی کیا کرتا ہے؟ آپ کو دیکھ کر، آپ کی بات کو، آپ کے چہرے کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے اس کے پاس آنا ہے یا نہیں آنا. اگر آپ روحانی طور پر پیدا ہو گئے ہو، آسمان کی بادشاہی کے وارث بن چکے ہو، تو پھر یاد رکھو آپ کو بچے کی مانند ہونا چاہیے. جب بچے کو وہ 3 شخص اپنا ایکشن دیتے ہیں تو بچہ کوئی ریئیکشن نہیں دیتا، بولتا نہیں ہے. آج اگر آپ آسمان کی بادشاہی کے لیے
राह तैयार करने के लिए अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी रूह को, अपने खानदान को तैयार करते हो, तो फिर याद रखो बहुत से लोग आपको गालियां देंगे, बहुत से लोग आपके स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर बातें करेंगे, बहुत से लोग आपकी लाइफ के ऊपर कमेंट्स करेंगे, उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे और बोलेंगे कि तू किधर से आ गया है भाई, पहले तो तू ऐसा था, अब तू वैसा है। याद रखें, मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत से लोग हैं इस दुनिया के अंदर। एक लोग होते हैं वो लोग जो बुलाए गए हैं। पूरी दुनिया के अंदर क्राइस्ट ने कहा मैं तुम्हें भेजता हूं, अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। पूरी दुनिया के अंदर हर रंग का, नस्ल का आदमी को खुदा ने क्या कॉल की है, क्या की है, कॉल की है। उसमें से ब्लैक, उसमें से गोरे, उसमें से चीनी, उसमें से पाकिस्तानी, उसमें से हांगकांग का हर तरह का बंदा खुदा ने इस रोजमिल के ऊपर उनको, अपने शिगिर्दों को, जिनको खुदा ने मसा किया, जिनको ब्लेस किया, उनको कहा कि जाओ बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से उनको ब्लेस करो और उन्हें तालीम दो कि आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। याद रखें, आज हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम पता क्या है, हम लोग तौबा तो कर लेते हैं पर बच्चे की मदद नहीं बनते। हम बुड़बुड़ाते हैं, जहां चौक में मसला बांझे और तो फिर हाथ दे ए दो बटन उतार कर फिर सीधा हो जाते, हाँ भाई मैं बाद में देखांगा तेनू। हम लोग तौबा तो करते हैं मगर रूहानी बच्चे होने का किरदार अदा नहीं करते। क्या वजूहात है? हमारी ब्लेसिंग इन्हीं किरदार की वजह से रुक जाती है। हमारी ब्लेसिंग, आसमानी ब्लेसिंग जिसके मैं और आप वारिस हैं, हमें नहीं मिल पाती। आज मैं तौबा की थी पर रूहानी बच्चा नहीं है। तेरे मुंह से गालियां निकलती हैं, तेरे मुंह से मैन ऑफ गॉड जो बहुत ज्यादा इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर है, आप लोग उनके खिलाफ बोलते हो, उनके खिलाफ बुक्स करते हो। वो जो बात आपको मालूम नहीं है, सुनी सुनाई बातें आप मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बोलते हैं, आप लोग चर्चिस के खिलाफ बोलते हो। याद रखें, इससे साबित हो जाता है कि आप रूहानी बच्चे नहीं हो, आप आसमान की बादशाही के फरजंद नहीं हो। बस आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तौबा का नाम सुना है, उसके रूल्स नहीं जानते, आप उसकी कैटेगरीज को नहीं जानते, आप रूहानी तौर पर उस फाइल में नहीं हो। आज बहुत से लोग हैं ख्वाहिश करते हैं खुदावंद जिस तरह से यीशु मसीह उस पहाड़ के ऊपर गया और रात को पड़े कि अरे खुदा मेरे चगिर्द भी खुदा तेरे आठसी एंजल आ जाए। कैसे आए? नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ तूने मुंह से तौबा की है, तू रूहानी बच्चे का कैरेक्टर तेरी लाइफ के अंदर नहीं है। याद रखें, जब आप छोटे से बच्चे को पकड़ते हो, अगर किसी का यहां पर कोई छोटा सा बच्चा है, मैं उसको पकड़ना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा, आप मेरी बात को फॉलो कर पाओगे। जल्दी लेकर आओ। याद रखें, आज बहुत से लोग हैं, आज जी मूसा और एलिया आ गया, फिर आज इधर पहाड़ है, इधर भाई क्राइस्ट से मेरे अंदर बोल रहा है, तो फिर मूसा और एलिया आ गए हैं। हालेलुया। अब देखिए, कैसा तू बोला है कुछ नहीं, इसको पता है कि ये मेरी क्या रिश्तेदार है या मेरी मामा है, तो अब जैसे मैं इसको बोला गुस्से से और वो रोना शुरू हो गया। ये है एक्शन। जब आप खादमों को, जो रूहानी बच्चे होते हैं, आप उनको आप गलत रिएक्शन देते हैं, वो रूहानी तौर पर रोते हैं और उनकी दुआई आसमान पर जाती है और उनका बाप फिर उस बंदे के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब ये भी तो बच्चा है ना। अब एक रिएक्शन और देखो, हे कैसा है, वो नहीं रोया। अब मैंने आपको एक रिएक्शन दिया है, हाँ ये एक रिएक्शन है, मगर वो बोले नहीं।
जब आप रूहानी आसमानी खुदा के बेटे के खिलाफ फूक्स बोलेंगे, उसके खिलाफ जुदाइयां और बिदतों और बड़ी बड़ी खिलाफ बातें करेंगे, तो वो पास्टर इसी तरह से रूहानी बच्चा बोलता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, वो खामोशी के साथ अपने मस्जिद पर जाकर अपने बाप यहोवा के हुजूर और उसके बेटे यीशु के हुजूर और रूह कुदस की हुजूरी के अंदर जाकर रोता है। वो रोता है। तब आपकी लाइफ के अंदर कस आना शुरू हो जाता है, तब आपकी लाइफ के अंदर रूहानी ब्रेक थ्रू नहीं हो पाता। जितने चाहो आप पास्टर के पास चले जाओ, आपका ब्रेक थ्रू नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर रूहानी बच्चे बनने का आप लोगों को इल्म ही नहीं है। आप रूहानी स्कूल के अंदर पैदा ही नहीं हुए। आप जिस तरह से जिस इलाके के अंदर पैदा हुए, आप उसी स्कूल में पैदा हुए। अगर इस इलाके के अंदर अगर रूहानी तौर पर पैदा नहीं हुए, तो याद रखिए इस इलाके की जितनी भी डीमंस रूहानी वर्क करती हैं, आप उनके स्कूल में पढ़ते हो, आप उनके कायदे कानून में पढ़ते हैं, आप उनकी लैंग्वेज बोलते हो। क्यों बोलते हो? बाइबल के अंदर क्या, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई तौबा करता है और आसमान की बादशाही को बच्चे की इमानत कबूल करता है, वो जाएंगे। मुंह की बातों से नहीं जाएंगे, करैक्टर से। करैक्टर ठीक होगा, बच्चे जैसा होगा, तब जाओगे। मुंह से ऐसे ना कहो वो मिर्चा बड़ी लग गई, तोबा तोबा तोबा। एक ये भी तोबा है, एक भी तोबा है। आप लोग याद रखें, बाइबल के अंदर साफ साफ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। और आसमान की बादशाही कहां पर है? मक्का शरीफ की किताब के अंदर क्या है, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा रखा है, अगर तेरे पास जोर है तो खोल। हमारे पास जोर कहां है? किधर है जोर? हम रूहानी बच्चे ही नहीं है, तो जोर तो पाक रूह से आता है। बाइबल के अंदर क्या, तुम यीशु ने कहा, मैं आसमान पर जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं, वो जब आएगा तो वो तुम्हें जोर देगा। क्या देगा? जोर देगा। आप रूहानी बच्चे हो तो फिर आपके पास जोर होना चाहिए। आप हर उस दरवाजे को जो इब्लीस ने ब्रेक थ्रू की तरह आपकी आगे हाथों को बांध दिया है, ब्रेक कर दिया है, आप उसे तोड़ पाओगे। तब तोड़ पाओगे जब आप रूहानी बच्चे होगे और आपको जोर आसमान से, खुदा के रूह से मिलेगा। हालेलुया। याद रखें, ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ तौबा करते हैं और रूहानी बच्चे नहीं होते। और बाइबल के अंदर लिखा है कि मैं उन लोगों के गले के अंदर चक्की का पाट डालकर उन्हें गहरे समुद्र में फेंक दूंगा। और वो कहते हैं कि खुदावन, बहुत से फिर वो लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, और फिर बाद में कहते हैं हमने वहां भी दुआ कराई, उधर भी गए, इधर भी गए, ओपा जी बस जिथों तक हो सके ही गड्डी बजाई। पर याद रखें, हमारी लाइफ के अंदर रूहानियत नहीं। याद रखें, हमारे मुंह के अंदर एक ही चीज, ये मेरी बात जरा ध्यान सुना, कभी किसी ने पताल दोज़ख की आग देखी है? हाँ जी, दोज़ख की आग कभी देखी है आपने? कभी उसके अंदर फिंगर डाली है? कभी उस आग के अंदर अपना हार्ड दिल उस पर डाला है, या अपना माइंड डाल के उसको चेक किया कभी? मैं आपको बता सकता हूं, आपको टेस्ट करवा सकता हूं। अभी आपके मुंह के अंदर क्या है? दोज़ख की आग। जब आप किसी के लिए लफ्ज बोलते हो ऐसे घटिया और नकम्मे, तो आपके मुंह से क्या निकलती है? आग। और वो बंदा जो आगे होता है वो फिर आपकी बातों से परेशान हो जाता है, वो रात भर सो नहीं पाता, वो कई दिन इस बात से परेशान रहता है, मेरा वो शख्स जिस पर मुझे बड़ा भरोसा था, क्या किया? बड़ा परेशान होता है कि तेरे मुंह से क्या निकली है? दोज़ख की आग।
याद रखें, बाइबल के अंदर लिखा है ये सारा बदन ब्लेस हो सकता है, पर एक चीज, जो शख्स एक चीज को कंट्रोल कर लेगा, याद रखें, वो रूहानी बच्चा कहलाएगा। वो क्या है? जुबान। इसको काबू में रखना बड़ी मुश्किल सी बात है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये घरों को उजाड़ देती है, ये बस्तियां को जला देती है। आज बहुत सी लोग हैं, वो छोटी सी बात कर रहे हैं, बस्तियां बाकी जल जाती हैं, इसलिए कंट्रोल नहीं है। हमारी लाइफ के अंदर कंट्रोल नहीं है। हमें रूहानी, हम रूहानी बच्चे नहीं हैं, हमें रूहानी लेवल में जीना नहीं आता। तोबा की हुई है, आज तोबा की आई हाई भी आप जाने से उथे ओ साडा जगह जी, ओ साडी जगह उथे जाने असी उथे भी बड़ा हदिया पाने, ओ सर जी उथे भी पाए, उथे भी पाए। नो, ऐसा नहीं है। आप लोग याद रखें, जो रूहानी बच्चा है वही आसमान की बादशाही का वारिस है। उसी की रूह के ऊपर मोहर की गई है, उसकी रूह के ऊपर भी मोहर की गई है, और उसकी जान और उसके बदन के ऊपर मोहर की है। यीशु ने खुद उसके ऊपर मोहर की है। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते। याद रखें, रूहानी बच्चे बने। तोबा बंद कर दो भाई, रूहानी बच्चे बनो, क्योंकि जो रूहानी है वही आसमानी है। जो रूहानी है वही आसमानी है, और जिसकी जुबान कंट्रोल नहीं है वही तोबा है। याद रखिए, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, बच्चों को मेरे पास आने दो, मैं इन्हीं के लिए आया हूं। हालेलुया। अगर आप आसमान की बादशाही के बच्चे हैं तो आप अपने लिए ताली बजाएं। खुदा ने आपको बरकत दे। आमीन।